Assalamu alaikum, welcome back to our YouTube channel. We were talking about psychological realism in the middle on the floors, a psychoanalytic perspective, and we talked about how incorporating psychoanalytic theory enriches the understanding of the psychological realism in the mill on the floors, and how George Eliot's nuanced portrayal of characters aligns with key psychoanalytic frameworks, particularly those of Sigmund Freud, Carl Jung, and later theorists like Lacan. And we talked about Freud's theory of unconscious, we talked about Jung's archetypes and collective unconscious, and we talked about Lacan's mirror stage and desire, and now and also we talked about Klein's object relations theory, and now we will talk about the psychoanalytic themes in the mill on the floors. So it is an exploration of unconscious mind and internal conflicts by your very own Yumna Shahid. Let's start. The Mill on the Floors by George Eliot delves into the psychological complexities, focusing on the inner lives of the Tulliver siblings. Who are the Tulliver siblings? It's our protagonist Maggie and her brother known as Tom. So how can we apply the psychoanalytic approach on this relationship? Using Freudian psychoanalysis, we explore repressed desires, unconscious motives, and inner conflicts of the character. And we also came to know that even the object relations theory and the internal objects concept of Klein can also be applied on this relationship. And also we can apply the mirror stage or the desire and the other concept of Lacan on this. And also we can apply what we studied. We can apply Jung's archetypes, and how feminine archetypes are there, and how we can apply that on the Maggie's character, and the shadow and the anima archetype. And then now we are going to talk about the other key psychoanalytic themes in the novel. So the first theme that I want to talk about is repression and unconscious desires. अच्छा, थ्योरीज पढ़ने के बाद और उनको अप्लाई करने के बाद आई थिंक नाउ इट इज़ ईजियर. तो इसी वजह से मेरा ये कंसर्न रहा कि पहले मैं थ्योरीज आपको अप्लाई करना सिखाऊं कि कौन कौन सी थ्योरीज उस पर अप्लाई हो सकती हैं, साइकोएनालिटिक थ्योरीज जो हैं. तो अब जो है वो आपको रिप्रेशन और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स का बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 4 की 4 थ्योरीज जो मैंने आपको इस पर अप्लाई करना सिखाई हैं, चारों की चारों जो थ्योरीज हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है रिप्रेशन से, रिप्रेस फीलिंग से और अनकॉन्शियस डिज़ायर से. तो हम लोग इसको थीमेटिक थ्रेड्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर इवन व्हेन यू आर एक्चुअली doing thematic analysis of this novel, you can add those theories in your analysis. जैसे Maggie Tulliver's struggles torn between intellectual curiosity and romantic yearnings. You can apply all those theory in this very domain, that the struggles of Maggie और वो जो inner conflict है उसका between her intellectual curiosity and उसकी जो romantic yearning है उसमें you can apply those theories. And also Tom Tulliver represses emotional vulnerability in favor of societal role. इस पे बात करना चाहूँगी मैं टॉम पे, क्योंकि मैगी के कैरेक्टर पे हमने बहुत साइको एनालिसिस किया है उसका. तो जो टॉम है उसका भी मैं बात कर रही थी जब मैं आपको यंग का बता रही थी आर्कीटाइप्स का, एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फेमिनिन आर्कीटाइप्स एंड द मैस्कुलिन आर्कीटाइप्स. मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस पे आर्कीटाइप्स पे अलग से, वो आपको बड़ा अच्छा एक उसमें जो है वो चीज़ मिलेगी. खैर, टॉम के सिर्फ और सिर्फ मैगी सफ़र नहीं करी है, टॉम से भी कुछ जो है वो आर्कीटाइप्स एसोसिएटेड है एज अ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि उसने रिप्रेस करना चीज़ों को. जो रिप्रेशन है ना उसका इमोशनल वल्नरेबिलिटी का, यानी उसने इमोशनल नहीं होना है, उसने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं. वो जो सारा मर्द रोता नहीं है, ये सारे एक जो है वो किस चीज़ को क्या चीज़ बॉर्न हो रही है इससे, एक पूरा एक मैस्कुलिन आर्कीटाइप बॉर्न हो रहा है कि एक मेल को ये होना चाहिए, और हम सबकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ आ जाती है. और अगर हम लोग को उसके अलावा वो दिखे जो सोसाइटल परसेप्शन से अलग है इमेज, वो हम लोग को लगता ही नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है.
ठीक है। तो हम लोग टॉम टुलिवर के इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि रिप्रेशन के उसके अंदर, रिप्रेशन के थीम के अंदर, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाती है, मैगीज रिलेशनशिप्स पर्टिकुलरली विद स्टीफन गेस्ट रिवील अनकॉन्शियस डिज़ायर्स चैलेंजिंग हर मॉरली। आपको पता है कि ये स्टीफन गेस्ट के साथ जो उसका रिलेशनशिप था, इसके बाद जिसने भी नॉवल पढ़ा उनको पता है वो जो पूरा चैप्टर है बिफोर द फ्लड, वो जो पूरा वो जो सिनेरियो है वो इस चीज़ पे बिल्ट है कि हाउ मैगी को किस तरह से आउटकास्ट कर दिया गया था। इवन टॉम ने खुद ने जो है वो उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया था, क्योंकि एक सोसाइटल प्रेशर था जिस पे वो जो एक फेमिनन आर्केटाइप है, वो आर्केटाइप है ना, उस पर पूरा नहीं आ रही थी मैगी। मैगी ने कुछ ऐसा किया था और उसका जो रिलेशनशिप था स्टीफन गेस्ट के साथ, उसको जो था वो इमोरल समझा जाता था सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप उसकी स्टीफन गेस्ट के साथ है वो रिवील करती है उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, और वो अपनी मोरालिटी को वो चैलेंज कर रही है इसके अंदर। लेट्स टॉक अबाउट द एडिपल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत डायरेक्ट एडिबल कॉम्प्लेक्स का थीम नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो रिलेशनशिप है ना मैगी का अपने फादर के साथ, मैगीज रिलेशनशिप विद हर फादर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है एडिपल डायनामिक्स को, क्योंकि आपको पता है कि एडिपल कॉम्प्लेक्स क्या है। इट स्टार्ट्स विद, हमारे लिए ये स्टार्ट होता है जब हम लोग ग्रीक लिटरेचर के अंदर पहले पहले पढ़ते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एडिपस रेक्स के अंदर जो रिलेशनशिप है किंग एडिपस का विद हिज मदर, वहाँ पे भी एडिपस कॉम्प्लेक्स जो आता है, इसी से फ्राइड ने उसी के एनालिसिस के थ्रू जो वो एडिपल कॉम्प्लेक्स को निकाला है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे मैगी का डायनामिक है ना अपने फादर के साथ, वो मतलब जिस तरह से वो अपनी सेल्फ वर्थ को उसके साथ जो है वो उसने जोड़ा हुआ है कि मतलब जब तक फादर का अप्रूवल नहीं होगा कि वो वर्दी है, तब तक वो वर्दी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ये हिंट दे रहा है कि मतलब मैगीज रिलेशनशिप विद हर फादर रिफ्लेक्ट्स एडिपल डायनामिक्स विद हर फादर्स अप्रूवल सेंट्रल टू हर सेल्फ वर्थ। और कन्फ्लिक्ट क्या है कि मैगीज डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस वर्सेस इमोशनल डिपेंडेंस ऑन हर फादर। उसकी जो इंडिपेंडेंस है की डिज़ायर है वो कंट्रास्ट कर रही है, वो कन्फ्लिक्टेड है बिकॉज ऑफ हर इमोशनल डिपेंडेंस ऑन हर फादर। उसकी जो वैलिडिटी जो उसको चाहिए है, अपने फादर का अप्रूवल जो चाहिए है, उसके साथ वो क्लैश कर रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है कि मैगीज गिल्ट आफ्टर द अफेयर विच स्टीफन हाईलाइट्स द एडिपल अंडरटोन्स इन हर इंटरनल कन्फ्लिक्ट। लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिटी एंड स्प्लिट सेल्फ। ये एक ऐसा थीम है जो आपको डायरेक्टली मिलेगा। हम जब थेरीज अप्लाई कर रहे थे तब भी हमने इसका डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी एंड द स्प्लिट सेल्फ जो है, ये जो फ्रेगमेंटेड सेल्फ, अब आप थेरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप एक टेक्सचुअल एविडेंस देते हैं, जब पता चलता है कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, जब आप फिलोसफी को जो है वो मिक्सअप करते हैं विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसके बाद ही आपका जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है। तो जब आप इसके अंदर बात करेंगे स्प्लिट सेल्फ की, तो अगर आप फ्रेगमेंटेड सेल्फ या मिडर स्टेज की बात कर लें, या शेडोज़ की बात कर लें, या इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की बात कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका जो है ना वैलिड होगा मटेरियल। तो मैगीज डिवाइडेड सेल्फ थीम हो सकता है, और इसके अंदर आप उन थेरीज का हवाला दे सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी। कांस्टेंट इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फिजिकल डिज़ायर्स। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। जो इसका साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, इट इज़ अ बैटल बिटवीन कॉन्शियस रैशनल सेल्फ, सोशल कॉन्फॉर्मिटी, अब वो सोशल परसेप्शन के थ्रू जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करे, एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर्स भी हैं जो कि उसको फ्रीडम भी चाहिए और पैशन भी चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है कि मैगीज फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर्स सच एज, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग, ठीक है, सच एज गिल्ट आफ्टर द अफेयर शो हर डिवाइडेड सेल्फ इन द नैरेटिव। जी, गिल्ट एंड द शेम एक बहुत बड़ा इसके अंदर थीम है, और वो भी आप इन थेरीज की डायमेंशंस के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये गिल्ट एंड द शेम जो है ये फ्रेगमेंटेड सेल्फ से ही आता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि सोसाइटी की परसेप्शंस हैं एक फ़ीमेल के साथ, वो किस तरह से क्लैश कर रही हैं विद मैगीज एक्शंस जो वो लेती है अपने अनीमा के थ्रू, यानी वो खुद जो जो चाहती है, जो उसके इंटरनल डिज़ायर्स हैं, वो वो शो कर देती है, और उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट आता है मॉरलिटी जो कि सोसाइटी ने जो है वो इम्पार्ट की है फीमेल पे, ठीक है, और जो वो कर रही है, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो उसकी एजेंसी है, ठीक है, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो गिल्ट और शेम निकलता है। और इसके बाद जो होता है वो होता है जो जूंग कहता है कि
रिकग्नाइज करना अपने शैडोज़ को, अपने एरर्स को, कि कैसे था वो, क्यों था, और रिप्रेस फीलिंग्स क्या थी, और अपने एनीमा को भी, ठीक है। जब आप उनके साथ आपका एक इंटीग्रेशन हो जाती है ना, तब यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो इस नोवेल के एंड पे ये गिल्ट और शेम भी ख़त्म होता है, और मैगी कम्स आउट ऑफ हर शेडो, और अनीमा और शेडो जो है वो एक से नहीं रहते, या जो कन्फ्लिक्ट है डिज़ायर में और सोशल कॉन्फॉर्मिटी में, वो जो है वो सॉरी मैंने पहले लाइन बोली, अनीमा और जो शेडो है वो अलग नहीं रहते, रादर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। और सिमिलरली जो सोशल कॉन्फॉर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिज्म है वो भी इकट्ठा हो जाता है, और उसको अपनी लास्ट मोमेंट्स पे, जब थोड़ा सा स्पॉइलर है लेकिन जब वो डेथ होती है उन लोगों की, जब लास्ट में वो ड्राउन हो रहे होते हैं, तब उसको जो है वो समझ आती है अपनी, ठीक है। तो वो ये गिल्ट और शेम से भी वो निकल आती है वहाँ पे, ठीक है। तो खैर खैर ये वाली वो स्टेज है जब वो जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी और अपने इंटरनल डिज़ायर्स और अपना अनीमा और अपना जो एक्चुअल इंट्यूशन है उसके थ्रू वो एक्शन लेती है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है वो गिल्ट एंड शेम होता है, जब वो सोशल कॉन्फॉर्मिटी को रियलाइज़ करती है कि वो नहीं किया उसने, ठीक है। तो मैगीज़ गिल्ट अफेक्ट्स हर सेल्फ आइडेंटिटी पर्टिकुलरली आफ्टर अफेयर विद स्टीफन। और जो शेम है एज अ साइकोलॉजिकल थीम, इंटरनलाइज्ड गिल्ट disrupts Maggie's sense of worth and moral integrity. Example is emotional breakdown of Maggie and self-punishment after the affair reflect the impact of the social shame on the individual. Family dynamics and psychological development. Maggie and her mother represents traditional femininity and moral rigidity, contrasting with Maggie's desires. Father-daughter relationship, tension between Maggie's loyalty and her desire for independence. Example is Maggie's decision to run away with Stephen highlights the internal struggles between family loyalty and personal freedom. Psychoanalytic interpretation of key events. Maggie's affair with Stephen Guest represents unconscious desire and conflict against social norms, and Maggie's final decision to return to the river and death as an unconscious escape from the psychological turmoil and guilt. So conclusion is that The Mill on the Floors explores repression, the Oedipus complex, guilt and the shame in Maggie's psychological struggles. And final thoughts क्या हो सकती हैं? The Mill on the Floors offers deep psychoanalytic insights into the character development and the influence of inner conflicts. Thank you so much. These are the references that you can give.